بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ریڈ زون میں خوش آمدید۔ میں ہوں فرید کاکڑ۔ ناظرین، کل لاہور رنگ روڈ پر خاتون کے ساتھ مبینہ طور پر زیادتی کی گئی اور انتہائی دلخراش واقعہ ہے۔ جتنی مذمت کی جائے کم ہے، اور جو اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات ہے وہ یہ کہ بچے بھی ان کے ساتھ ہیں۔ بچوں کے سامنے مبینہ طور پر جو ہے وہ زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ میرے ساتھ سامنے بالکل ابھی میں رپورٹ اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اوورسیز سیکورٹی ایڈوائزر کونسل بیورو آف ڈپلومیٹک سیکورٹی، یہ ان کی رپورٹ میرے سامنے ہے۔ یہ جو پچھلے کچھ عرصے میں جو ریپ کیسز ہیں ان کی تعداد میں جو اضافہ ہوا ہے، پتہ نہیں معاشرہ کس جانب بڑھ رہا ہے۔ اور آج جو عمر شیخ صاحب نے جو سی سی پی او اے لاہور کی، انہوں نے جو ہے وہ بات کی کہ ان کو جانا ہی نہیں چاہیے تھا خاتون کو۔ تو معاملہ کیا ہے، پنجاب گورنمنٹ کیا کس طرح دیکھ رہی ہے ایشوز کو، اور کب یہ جو کلپٹس ہیں، یہ جو زیادتی کرنے والے ملزم ہیں، ان کو کب جو ہے وہ عبرت اپنے انجام تک پہنچائیں گے، تاکہ جو یہ جو خاتون کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے تاکہ اس کا ازالہ ہو۔ اس وقت ہمارے سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ترجمہ پنجاب حکومت پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہے عثمان سعید بسرا صاحب۔ عثمان صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ ویلکم ٹو ریڈ زون۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ عثمان بھائی، آج آپ کے سامنے میرے خیال سے تو جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ آپ لوگ بھی ظاہر سی بات اس چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ کل لاہور رنگ روڈ پر خاتون کے ساتھ مبینہ طور پر زیادتی ہوئی ہے اور بچے بھی ان کے ساتھ ہیں۔ یہ معاملہ دراصل ہے کیا، کیونکہ آپ لوگ تو آفیشیلی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے، یہ واقعہ جو کل کا ہوا ہے لاہور سیالکوٹ موٹر وے کے اوپر ہوا ہے، اور یہ ایک بڑا ہی دلخراش واقعہ ہے۔ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، اور میرے خیال میں کیونکہ پاکستان کے اندر ماضی میں بھی بڑے اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں اور اس پہ ہمیشہ مذمت کر کے اور چیزیں آگے بڑھتی رہی ہیں، میرے خیال میں اس دفعہ آپ کو جو ہماری حکومت ہے اس کے اندر تبدیلی نظر آئے گی، اور ہم اس میں ایک ایف آئی آر کا اندراج ہو چکا ہے، اور اس کے اوپر جو انویسٹیگیشن کی ٹیمز ہیں، وہ انویسٹیگیشن کی ٹیمز اس کے اوپر کام کر رہی ہیں۔ چھاپہ مار ٹیمیں جو ہیں وہ تشکیل دی گئی ہیں، اور جو ہی یہ واقعہ ہوا ہے وہاں پہ جیو فرینزنگ کے لیے ٹیمیں بھی آن پہنچی ہیں، اور پورا جو اس کا ایک لوکیلٹی ہے جہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے اس کو کارڈن آف بھی کیا گیا ہے۔ تو وہ تمام چیزیں، وہ تمام وسائل جو دستیاب تھے، اس حساب سے وزیر اعظم پاکستان جو ہیں انہوں نے اس کا نوٹس لیا ہوا ہے، اس کے اوپر انہوں نے رپورٹ طلب کی ہوئی ہے۔ چیف منسٹر جو ہیں وہ اس کی ساری جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے ساتھ ان ٹچ ہیں۔ تو دیکھیے، جو سردست ہو سکتا تھا اندراج کرنا مقدمے کا، اور اس کے لیے ملزمان کی گرفتاری کے لیے، اور اس کی پیشرفت یہ ہے کہ آج جو اس کے ارد گرد کے گاؤں ہیں وہاں پہ پولیس نے ریڈ بھی کیا ہے، اور وہاں سے جو ہمیں مشتبہ ملزمان ہیں اس کے، ان کی جو موجودگی ہے وہ نیئر بائی علاقے میں وہ بھی ملی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر بڑی جلدی آپ کو جو ملزمان ہیں وہ قانون کی کٹارے میں کھڑے ہوں گے۔ لیکن اس میں جو سب سے بڑی بات، اہم بات جو نوٹ کرنے والی وہ یہ ہے کہ دیکھیے، اس واقعے نے اس پوری ہماری جو سوسائٹی کا ایک کلی ہے وہ کھول کے رکھ دی ہے کہ معاشرے میں جو ہماری تنزلی ہے، ہماری اقدار کی اور ہماری روایات کی، وہ اس تیزی سے ہو رہی ہے کہ اب ہمارے بچے، ہماری مائیں، ہماری بہنیں کہیں بھی محفوظ نظر نہیں آ رہی ہیں۔ تو جو ہماری پوری اجتماعی سوچ ہے معاشرے کی، اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میرے خیال میں جب ایسے واقعات ہوتے ہیں جہاں قانون کی حکمرانی اور پاسداری کی بات اٹھتی ہے، وہیں پہ ہمارے سماجی رویے جو ہیں ان کے اوپر بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جلدی آپ کو آج اس کے اوپر ٹھیک ہے بلا شبہ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے عثمان بھائی کہ معاشرہ پتہ نہیں کس جانب جا رہا ہے، اس کے اوپر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ لیکن آج جو سی سی پی او لاہور ہے عمر شیخ صاحب، ان کی جانب سے جو بیان دیا گیا وہ انتہائی احرام کن بھی ہے، مضحکہ خیز بھی ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خاتون کو جب پتا تھا کہ یہاں پہ پیٹرول وغیرہ کا ایشو ہے یا اس روڈ پہ اتنی ٹریفک نہیں ہوتی، تو ان کو جی ٹی روڈ کا جو ہے وہ سہارا لینا چاہیے تھا۔ یہ میرے خیال سے کوئی لاجک ہے نہیں۔ آپ کی گورنمنٹ عمران خان صاحب سے ہمیشہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ ایکشن لیں گے، تو یہ اس طرح کے بیانات پولیس جو ہے وہ پروٹیکشن کے لیے، اگر پولیس ہی ڈرائے دھمکائے اور اس طرح کی باتیں کرے تو پھر عوام کہاں جائے؟ ایکشن لیا جائے گا عمر شیخ کے خلاف؟ دیکھیے، بالکل میں کہا کرتا، میں آپ کی بات بتاؤں، ہمارے اس میں میڈیا کو بھی تھوڑا سا رسپانسبل بیہیو کرنا چاہیے۔ مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں نے سی پی او صاحب کے جو اسٹیٹمنٹ کو ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ سنا ہے، 3 دفعہ سنا ہے، وہی تو اسٹیٹمنٹ کے اندر کوئی ایسی بات نہیں نظر آ رہی۔ اس میں بڑے سارے چینلز نے کہا کہ اس میں شو کرنا شروع کر دیے ہیں کہ جیسے عمر شیخ جو ہے سی پی او لاہور، جو سی پی او لاہور ہے وہ اس کے اندر کوئی پتہ نہیں کسی کو بلیم کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک سوسائٹی میں ایک اپنے رول کی وجہ سے، اپنے ایک بڑا ہونے کی وجہ سے انہوں نے ایک تنبیہی بات کی ہے کہ اگر اس طرح نہ کیا جاتا، اگر اس طرح نہ ہو، پریکاشنری میجرز بھی لیے جانے چاہیے۔
तो इस रेलिवेंट उन्होंने बात की है, ना तो उन्होंने किसी को ब्लेम किया है, ना उन्होंने कहा है कि ये खातून को ब्लेम करें, मतलब ये एब्सोल्युटली आप उनकी जो तीसरी अहम बात यह है कि जितनी भी मीडिया के ऊपर फुटेज चल रही है सीसी को लाहौर की, वो सारी की सारी जो है वो बिल्कुल हटके है, उसका सिनेरियो कुछ और है, पूरी वो गुफ्तगू सुनाई नहीं गई है। तो मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, देखिए हमें जब इस तरह के वाकयात होते हैं इसके तदारुक के लिए किए जाने वाले इक़दाम से बात करनी चाहिए, हमें इसके जो एक सोशल डिग्रेडेशन है हमारे अंदर उस पर बात करनी चाहिए। अब सारा मीडिया वो देखिए, मैं अफसोस की बात है, वो एक नून लीग बैक मीडिया जो है उसके ऊपर इस तरह गुफ्तगू चल रही है सारी, जैसे पहले सीसीपीओ की अपॉइंटमेंट के ऊपर सारी नून लीग को मसला था, अब वो सीसीपीओ के ऊपर सारा ये वाकया जो डाल रहे हैं, सीसीपीओ ने उस औरत को या उस फैमिली के साथ किस तरह की बात की है, मैंने सारा बयान सुना है, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। और उस्मान भाई अगर कता कलामी के लिए माजरत में मैं उनको बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर रहा, मैं वो बात नहीं कर रहा, लेकिन वो जो स्टेटमेंट है वो जो मुझे पर्सनली जरा अजीब सी लगी, मैं आपको सुना देता हूँ अगर आप मुझे वक्त दें। उनकी तरफ से ये बयान आया है कि मेरे लिए हैरान हूँ कि 3 बच्चों की माँ है, अकेली ड्राइवर होने के बावजूद वो जीटी रोड पर क्यों नहीं गई? मतलब ये कोई लॉजिक तो है नहीं, जीटी रोड पे क्यों जाए? अगर वो मोटरवे पे जाना चाहे उससे भाईजान मुझे समझें लॉजिक क्या है। अगर आप एंकर हजरात में से या आपकी मीडिया के जितने भी लोग हैं, अगर थोड़ी सी तकलीफ करें और जो जाके मोटरवे का वो हिस्सा जहाँ पे ये वाकया पेश आया है, जरा उसकी जाके लोकेलिटी को चेक तो करें, लोकेलिटी है क्या। देखिए जो सियालकोट लाहौर मोटरवे है, इसका ये जो चंक है ये बिल्कुल वीरान है और इसके ऊपर कोई ज्यादा रश भी नहीं है, और रात को तो लोग इस पे, हम जो लोकल लोग हैं वहाँ पे उस तरफ रहते हैं, वो भी सफर नहीं करते हैं। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वो जो उन्होंने बात की है वैसे सीसीपीओ लाहौर, उन्होंने इसकी लोकेलिटी को जानते हैं, उन्होंने लोकेलिटी के हिसाब से बात की है कि खातून को रात के टाइम पे वहाँ पे सफर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आप ही कह रहे हैं तंबीही बात की, उन्होंने कोई तनकीद नहीं की है? नहीं तनकीद एब्सोल्यूट, देखिए मैं आपको दोबारा कहूंगा, मुझे हमें अफसोस हुआ कि अभी भी मेन स्ट्रीम के ऊपर भी सारे चैनल्स हैं उसके ऊपर भी यही बात चल रही है, आज रात की सारे टॉक शोज के ऊपर यही बात चल रही है। देखिए वो उन्होंने उनका बयान अभी उन्होंने दोबारा मीडिया से बात की है, मुझे एक शख्स कह रहा है कि मुझे उतना ही दुख है जितना मेरी अपनी बेटी के साथ ये वाकया हो दुख हो। मैंने कहा तो नहीं, इस बात को छोड़ के शेख साहब की बात से सीसी को लाहौर से आगे चलना चाहिए और हमें ये देखना चाहिए कि हम एक इंडिविजुअल अपनी सोसाइटी के अंदर, फिर हम हुकूमत के तौर पे और आप मीडिया के तौर पे इसके अंदर क्या बेहतरी ला सकते हैं चीजों को, और किस तरह मुआशरे को ज्यादा जो है हम सेव कर सकते हैं, किस तरह से हम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास लोगों को दे सकते हैं, जैसे कि हम बैशिंग शुरू करते हैं सीसी को लाहौर। तो बिल्कुल दुरुस्त है, हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन आप भी अपने जो आपके साथी हैं, जो आपकी पार्टी के लोग हैं, उनको भी समझा देंगे। शेरी मजादी साहिबा ने भी जो है वो पुलिस अफसर को, जो सीसीपीओ लाहौर उमर शेख साहब, इनके खिलाफ ही ट्वीट डाला है। चलो मैं जरा नेक्स्ट मराले की तरफ जाता हूँ। उसमें ये बताइए, एक मिनट देखिए, मैं शेरी मजादी साहब ने जो बात की है वो भी उसी कॉन्टेक्स्ट में किया है, क्योंकि आपका सारा मीडिया उठा के सीसीपीओ को ब्लेम कर रहा है, तो शेरी मजारी ने उसके ऊपर ट्वीट किया है। और मेरे ख्याल में जब वो चीज से वाकिफ होंगी, जो पूरी एक वीडियो जब उन्होंने सुनी होगी, तो उनको भी समझ आ रही होगी कि उन्होंने तंबीही तौर पर बात की है। तो इसलिए मेरे ख्याल में आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने कोई इस तरह की बात की है। जो मीडिया कन्वे कर रहा है एक जनरल, वही उन्होंने इसके ऊपर बात की है। तो मीडिया को चाहिए कि थोड़ा सा बात करने से पहले, इस बात को उठाने से पहले थोड़ा सा देख लिया करे कि इसके मंफी और मस्बत पहलू होते हैं। तो ये जो सीसीपीओ की बैशिंग शुरू की है मीडिया ने, इसके मंफी पहलू हैं, मस्बत पहलू बहुत कम है। ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा उस्मान भाई ये बताइए कि बहुत सारे जो इंतजामिया से भी हमारी भी बात हुई है, वो ये कह रहे हैं कि हमने गवर्नमेंट को कहा कि यहाँ पे जो है वो पुलिस जो है वो यहाँ पे तैनात कर दे, या ये एरिया जो है मोटरवे पुलिस के हवाले कर दे, वहाँ पे कोई इंतजाम बेहतर नहीं है। वो जो है बेसिकली गवर्नमेंट को जो है वो कसूरवार ठहरा रहे हैं। तो आपके ख्याल में क्या गवर्नमेंट की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? क्योंकि ये जो इलाका है, ये गुजर पूरा लाहौर का थाना जो है यहाँ पे बनता है, और इससे 3 माह कबल भी एक 19 साल बच्ची जो है उनके साथ ज्यादती हुई इस इलाके में। तो ये ओवरऑल आपके ख्याल में जो कसूरवार है वो आपके ख्याल में कौन है? इंतजामिया है, या आपके ख्याल में जो इंतजामिया वाले कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की भी नाअहली है? आप किस तरह देख रहे हैं इस इशू को कि बेसिकली इशू किसका है? देखिए, अगर तो हम इसके इशू के ऊपर हमने सियासत करनी है तो फिर आप जिसको मर्जी ब्लेम करना शुरू कर दें, फिर आप हुकूमत को भी ब्लेम कर सकते हैं, फिर आप पुलिस को भी ब्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने इसमें देखना ये है कि एक्चुअली और फैक्चुअली मामला क्या है, तो वो ये है कि देखिए कोई शक नहीं है कि वहाँ पे पुलिसिंग का इंतजाम होना चाहिए। सियालकोट लाहौर मोटरवे का ये जो सेक्शन है, इसके अभी दोनों तरफ अभी फेंसिंग का काम चल रहा है और दोनों तरफ अभी फेंसिंग नहीं हुई है। ये भी फेंसिंग हो जानी चाहिए थी, और इसमें भी थोड़ी डिले हुआ क्योंकि फेंसिंग होना शुरू हुई है और इस हिस्से में भी फेंसिंग नहीं हो सकी है। एक ये भी एक वजह है इसकी।
लेकिन बहरहाल इसमें कोई शक नहीं है कि पुलिसिंग का इंतजाम बेहतर होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर पुलिसिंग जो है इसको हमेशा से सियासी असर रसूख के तहत पुलिस को इस्तेमाल किया गया है। मेरे ख्याल में आपने किसी ने अभी तक मीडिया पे ये बात तो उठाई नहीं कि पाकिस्तान के अंदर 72 साल से पुलिस तो रही है खानदानी निज़ाम की गुलाम। यहाँ पे आज तक पुलिस के लिए, उसकी बेहतरी के लिए, बेटरमेंट के लिए, बेहतर पुलिसिंग के लिए तो कुछ किया नहीं गया। तो मेरे ख्याल में भी बहुत कुछ बेटर पुलिसिंग के लिए करना बाकी है। इसमें कोई शक नहीं है कि मुआशरे के अंदर हमारे जो एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है वो बहुत कम है। मैं ये नहीं कहूँगा ना होने के बराबर है, लेकिन बहुत कम है। इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है और वही निज़ाम की बेहतरी की हम बात कर रहे हैं जिसके ऊपर हमारे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के वज़ीर बिल्कुल दुरुस्त है और आपको वोट मिला है। हमें यकीन भी है, हम उम्मीद भी करते हैं कि जो आपके वादे हैं पुलिस रिफॉर्म्स के, वो जब आपकी हुकूमत खत्म होगी, जब नेक्स्ट यूनियन में आप जाएंगे तो ये सब कुछ हो चुका होगा। उस्मान भाई, ये जरा एक और इशू है, मैं इसके ऊपर भी आपसे बात करूं। एक तो ये जो मेरे सामने एक क्राइम रिपोर्ट है, ये 2018 और 2019 और उसके बाद का जो कंपेरिजन है, मैं स्पेशली रेप केसेस की अगर बात करूं तो प्लस 1.8% का इजाफा हुआ है। बुनियादी वजह क्या है? ये रेप जो केसेस बढ़ क्यों रहे हैं? हमने सुना था कि दिल्ली जो है वो रेप कैपिटल है और अब वहां पे तो बहुत ज्यादा होता है। अब पाकिस्तान में भी ये जो वबा है ये फैलने लगी। बुनियादी तौर पर मसला क्या है? अच्छा, एक आप उसको अंडरस्टैंड कीजिए कि हमेशा हम एक फिरका मलामतिया में चले जाते हैं और कोई भी इंसिडेंट होता है तो हम फौरी तौर पे पाकिस्तान को और अपनी कौम को और अपने मुआशरे को ही ब्लेम करते हैं। ये जो एक वेव है, देखिए आप इसको महज़ब दुनिया के अंदर चले जाएं, डेवलप डेमोक्रेसीज के अंदर चले जाएं जहाँ पुलिसिंग का निज़ाम और मुआशरे भी बड़े डेवलप हैं, रेप के केस वहाँ पे भी होते हैं। अब ये, लेकिन ये इसका मतलब हरगिज नहीं कि हर जगह पे होने चाहिए। सो ये एक असल में एक सोसाइटी के एक जो अमूमी रवैया होता है मुआशरे के अंदर, ये वहाँ पे एक टेंटेड चीज होती है, उसको ठीक करने की जरूरत है। इस सिर्फ आप पुलिसिंग की मदद से ठीक नहीं कर सकते, ना आप बहुत ज्यादा लॉज को अमेंड करके ठीक कर सकते हैं। इसके लिए इवेंचुअली आपको सोशल रिफॉर्म्स करना पड़ती हैं। तो मेरे ख्याल में क्योंकि दुनिया के अंदर इस पे काम हो रहा है, पाकिस्तान में इसके ऊपर काम किया जाना चाहिए। और इससे भी बढ़ के एक चीज है कि एग्जाम्पलरी पनिशमेंट जो है वो जरूर है, होनी चाहिए। जिस तरह आपको मालूम है कि कसूर के अंदर ज़ैनब वाला वाकया हुआ, उसके अंदर भी मुल्ज़मान को करार वाक़ई सजा मिली है, तो चीजें बड़ी एक एग्जाम्पल सेट हुई है। ऐसे ही इस केस के अंदर भी, और इससे मिलते जुलते दूसरे जो इस तरह के केसेज हैं जो बड़े दिलखराश वाकयात हैं, उसके ऊपर कानून की अमलदारी को अगर हम पूरी तरह से अपहोल्ड अच्छा उस्मान भाई जी, ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त है। मेरा बिल्कुल आपसे लास्ट क्वेश्चन है, वो ये बताइए कि सजा और जजा का जो अमल है बिलाशुबा उससे सख्त तरीन होना चाहिए ताकि इस तरह के वाकयात की जो है रोकथाम हो सके। ज़ैनब का वाकया हो या उसके बाद जो मोहम्मद छोटी बच्ची थी उसका वाकया हो, या कराची में होने वाला वाकया हो, या पिंडी में होने वाले वाकयात हो, मुझे ये बताइए कि आपके ख्याल में ये जो एक सोशल मीडिया पे बात चल रही है, आवाम चाहते हैं कि पब्लिकली जो है हैंग किया जाए ये जो भी मुल्जिम है, आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चूंकि बिल भी पेश किए, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई की ही कुछ रहनुमाओं ने उसको रिजेक्ट कर दिया, आपके ख्याल में सजा क्या होनी चाहिए? सजा और जजा के अमल में कोई तब्दीली होनी चाहिए? आपके ख्याल में जो निज़ाम मौजूद है वो बेहतर है? देखिए, सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि हम लोग तो हैं मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें इसके ऊपर फख्र है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, इस्लाम के अंदर जो इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो बड़ा क्लियर है। अगर आप इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस देखें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो सजाओं का तयन किया गया वो एग्जाम्पलरी पनिशमेंट थी। इस्लाम के अंदर जो कॉन्सेप्ट है सजा का वो एग्जाम्पलरी पनिशमेंट का है और वो किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं है, वो मुआशरे के अंदर एक मिसाल कायम करना है। अगर आप इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस को भी पढ़ लें, उसका भी यही बेसिक कॉन्सेप्ट और थीम है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में होने वाले फैसले और उस पर अमलदारी का नमूना भी देख लें तो वो भी एग्जाम्पलरी पनिशमेंट है। क्यों कहा गया कि अगर आप कोई शख्स जो है वो आपका कोई नुकसान पहुंचाए, आंख के बदले आंख है, हाथ के बदले हाथ है और जान के बदले जान है। इसलिए कि मुआशरे के अंदर जो जराइम पेशा अफराद हैं या जो जराइम करने का रुझान है उसके ऊपर कदगन लगाई जा सके। और एग्जाम्पलरी पनिशमेंट जो है वो हमेशा जुर्म की बेखनी करती है और मुजरम जो है उसकी हौसला शिकनी करती है। जैसे कि आप देखें कि इस्लाम के अंदर डेथ टिल स्टोनिंग के कॉन्सेप्ट है। देखिए, सुनने में तो ये बड़ी एक लगती है दर्दनाक बात, किसी इंसान को डेथ टिल स्टोन से डेथ कर दिया जाए, लेकिन उससे होता क्या है कि मुआशरे के अंदर एक बड़ी सख्त और बड़ा एक तंबीह किस्म का मैसेज चला जाता है कि अगर आप इस किस्म का कभी गुनाह करेंगे, जुर्म करेंगे, तो उसकी सजा भी बड़ी एग्जाम्पलरी होगी। सो मैं ये समझता हूँ अपनी जाती हैसियत के अंदर भी और कानून के तालिब इल्म होने की हैसियत से भी, और इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस और जो वेस्टर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस है दोनों को मैंने पढ़ा हुआ है। देखिए, एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दिए बगैर मुआशरे नहीं बनते हैं। आज जिस डेवलप डेमोक्रेसी के हम मगरब के अंदर तकलीद करने की कोशिश कर रहे हैं
माजी के अंदर वहाँ भी एग्जाम्पलरी पनिशमेंट रही है, वहाँ पे भी सजाए मौत जो है वो उनके कानून का और सजा का हिस्सा थी। अभी उन्हें मुआशरे वहाँ पे डेवलप कर गए हैं और बिहेवियरल स्ट्रक्चर उनका इम्प्रूव कर गया है, तो अब उन्होंने अपनी सजाओं के अंदर नरमी कर दी है। लेकिन अभी हम जो है वो बिल्कुल अर्ली स्टेज के ऊपर हैं। हमें एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देनी चाहिए और इस्लाम का यही कॉन्सेप्ट है, ये दिए बगैर आप मुआशरे के अंदर उस तरह का सुधार पैदा नहीं कर सकते। देखिए ना, आज क्राइम जो है वो फैशन बनता जा रहा है। आज चोरी जो है पाकिस्तान के अंदर वो कमोबेश इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई है। अब आप चोरी कर लें, बड़ा डाका मार लें, आपको बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं टीवी में बैठ के आपको डिफेंड करेंगे। लेकिन अगर एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दी जाती पहले दिन और लोगों को पता होता कि मुल्क के वसाइल लूटना या कोई भी जुर्म का सरजद करना होना या मुजरम की साइड पे खड़े होना इसकी सजा है, तो यकीनी तौर पे वो दोबारा ना होता। तो मेरे ख्याल में एग्जाम्पलरी पनिशमेंट भी होनी चाहिए। ठीक है। और जब तक मुआशरे के अंदर एक बुनियादी तौर पर सुधार पैदा नहीं होता, हमें एग्जाम्पलरी पनिशमेंट पे ही चलना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान सईद बसरा साहब, तर्जुमा पंजाब हुकूमत हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने बहुत डिटेल से इन इशूज़ पे बात की। उन्होंने कहा कि जब तक जो है हम मिसाली सज़ा का निज़ाम सेट नहीं करेंगे तब तक जो है ये इशूज़ बढ़ते रहेंगे। बिगाड़ सिर्फ निज़ाम में नहीं है, बिगाड़ इखलाकी अक़दार में भी है, बिगाड़ जो है वो माशरती अक़दार में भी है। हम बात करेंगे इस इशू पे कि बेसिकली माशरे में ये चीज़ क्यों जो है वो पैदा हो रही है, ये चीज़ क्यों पनप रही है। गवर्नमेंट का तो काम है चले कुछ हुआ उसके बाद एक्शन ले, उन चीज़ों को रोके, वो जो मुल्ज़िमान हैं उनको सज़ा और जज़ा का अमल से गुजारे। लेकिन सवाल ये है कि ये चीज़ माशरे में बढ़ क्यों रही है, बुनियादी वजह क्या है। ये कोई पहला केस नहीं है, इससे पहले ज़ैनब का केस, फरिश्ता मोहम्मद का केस, कराची का केस, कल का ये वाकया और बहुत सारे वो वाकयात जो अभी तक मीडिया में जो है कवर ही नहीं हुए, मीडिया तक पहुंचे ही नहीं है, क्योंकि हमारे माशरे में जो है वो खातून, हमारी बच्ची, हमारी माएँ, हमारी बहनें जो है वो ज़ुबान नहीं खोल सकती, क्योंकि हमारे इश्यूज़ ऐसे हैं कि वो जो है वो उन चीज़ों के ऊपर बात नहीं कर सकती। तो हम ये देखेंगे कि हमारे माशरे में ये चीज़ आखिर में बढ़ क्यों रही है, वजह क्या है, क्यों माशरे में इस चीज़ के जो ये जो ज़्यादती है या रेप है या गैंग रेप है, इसकी परसेंटेज क्यों बढ़ती जा रही है। इन इशूज़ पर बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं नाज़िया अली साहिबा, कॉलमिस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। नाज़िया साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू रेड जोन। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फरीद कि आज आपने मुझे इतने सेंसिटिव टॉपिक पर बात करने के लिए जी बहुत शुक्रिया। हम आपकी इंतहाई मशकूर हैं कि आपने हमें वक्त दिया। नाज़िया साहब, बड़ा सीधा सवाल है मेरा आपके सामने। बहुत दर्दनाक माहौल है इस वक्त। कल जो वाकया हुआ है, मेरे ख्याल से अल्फाज नहीं है मेरे पास कि मैं अपना दर्द बयान करूं, अपनी कौम का दर्द बयान करूं। आखिर में इस माशरे को हो क्या गया है। ये तो बड़ा अच्छा मुआशरा है, यहाँ पे तो इखलाकियात बाकी हैं, तो ये असल में हो क्या रहा है, ये ज्यादती के जो केसेस है ये क्यों बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल जो बात कही है वो दुरुस्त फरमाया आपने। लेकिन जहाँ तक बात हो रही है ना, इस वक्त जिस तकलीफ का आप जिक्र कर रहे हैं, उस तकलीफ से मैं वहाँ जाकर उस फैमिली से मिलकर, मरवा मासूम बच्ची, उसकी फैमिली से मिलकर और वो सारी चीजें देख चुकी हूँ। और हमारे पूरे मुल्क में जो बाज़मीर लोग हैं ना, यकीन मानिए उन सबके ज़मीर जिसके जिंदा हैं उनकी रूह कांप जाती है ये तकलीफें देखकर। और पूरी कौम हमारी परेशान है, तकलीफ में। मगर बात सिर्फ यही है कि हम इससे पहले भी कहते आ रहे हैं, हम इससे पहले भी इस चीज पर आवाज उठाते आ रहे हैं। चाइल्ड एब्यूज हो या रेप के दीगर केसेस हो, हमारे मुल्क में ये क्यों बढ़ते जा रहे हैं, इनकी कमी नहीं आ रही है। देखिए, इससे पहले इतना अर्सा हो गया ना, हम अगर 2, 3, 4 साल का भी टाइम लगाएं तो उसके बाद अभी इस साल में लास्ट 3-2 मंथ्स में केसेस बहुत ज्यादा सामने आए हैं। पूरे पाकिस्तान में सामने आ रहे हैं, मगर कराची में अब बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। मैंने लास्ट मंथ ही अपने गुज़िश्ता कॉलम में इसकी निशानदही की थी और उस वक्त सब समझ रहे थे कि मैं ये कहाँ से कह रही हूँ। मुझे लोगों ने पूछा भी था कि नहीं इतना तो नहीं हो रहा। मैंने कहा नहीं, चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए हमें काम करना चाहिए। जब ज़ैनब केस हुआ था और सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा वायरल हुई थी वो चीजें, तो लोगों ने, हमारे मुल्क की आवाम ने, शहरियों ने, सबने आवाज उठाई थी। हमारी कौम ज्यादती और जुल्म होते हुए नहीं देख सकती, इसलिए सब यकजा आवाज हुए थे। मगर उसके बाद जब हमने देखा कि बिल के ऊपर बात हुई असेंबली में, उसके बहुत सारे लोग अगेंस्ट हो गए कि इस तरह के मुजरिमों को सरेआम फांसी देनी चाहिए। उसके बाद और बहुत सारे बेशुमार केसेस होते चले गए। लेकिन हमारे यहाँ अगर हम ज़ैनब अलर्ट की बात करें, कोई भी चीज,
تو وہ کارآمد نہیں بنائی جاتی. میں ہمیشہ سب کو یہی کہتی ہوں کہ دیکھیں ابھی جو ہم نے سچویشن دیکھی ساری, اب اس میں ہوا کیا, وہ بہت قریب کا انسان نکلا نا, وہیں کا قریب کا انسان نکلا. لیکن یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے ہم معاشرے میں, ہماری سوسائٹی میں؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ جب تک ہم ایک کو عبرت کا نشان نہیں بنائیں گے نا, تو وہ حوصلہ سب کا بڑھتا چلا جائے گا. یہ ایک ذہنی بیماری ہوتی ہے, یہ ایک کیفیت ہوتی ہے. جس طرح سے ہم نے زینب قتل کیس میں دیکھا تھا, اس معصوم بچی کے ساتھ جو کرنے والا عمران تھا, اس کا اگر آپ بیک گراؤنڈ چیک کریں تو وہ ایک ذہنی کیفیت سے گزر رہا تھا. تو ان چیزوں پر کنٹرول پانے کے لیے یہی ہے کہ اس وقت ہم بہت ساری چیزوں کے لیے سوری ٹو سے میں ہمارے تمام ملک کے پولیٹیکل لیڈرز سے کہوں گی کہ اس وقت ذاتی اختلافات, اپنے پولیٹیکل سیاسی سارے اختلافات بھلا کر, اور بچوں کے لیے کم از کم آپ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو اور اس کو سیریس لیں. یہ بہت نازیہ صاحبہ بلا شبہ آپ درست کہہ نہیں کہ زینب واقعہ جو ہوا ہے اس میں ملزم جو ہے وہ ذہنی طور پر جو ہے وہ اس کے ایشوز تھے, لیکن سوال یہ ہے کہ کل جو واقعہ ہوا ہے, جو مکروہ عمل کل کیا گیا ہے, ایک خاتون جو اپنے بچوں کے ساتھ موٹر وے پہ سفر کر رہی ہے, اسلامک اسٹیٹ کے ایک سڑک پر جا رہی ہے, اپنے گھر جا رہی ہے, بجائے اس کی کہ وہ کسی مرد کو دیکھتے ہوئے اپنا محافظ سمجھے کہ میرا بھائی ہے, میرا مسلمان بھائی ہے, میرا ملک ہی شہری ہے, وہ بجائے اس کی کہ میری حفاظت کرے, اگر میں کسی مسئلے میں اگر کچھ مجھے مشکلات کا شکار ہوں یا کوئی مشکلات کا مجھے سامنا ہے, بجائے اس کی کہ وہ میری مدد کرے, وہ آ کر ریپ کرے. معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ معاشرتی جو اقدار ہیں وہ کہاں رہ گئے ہیں یہاں پہ؟ اچھا, بالکل آپ کی یہ بات بالکل درست ہے, اور یہ بہت المناک واقعہ ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. وہ اس لیے کہ اس ویک میں جیسے ابھی میں نے آپ کو بچوں کا ذکر کیا, چائلڈ ایبیوز کا ہوتا رہا سلسلہ, اس کے بعد ریپ کے کیسز خواجہ سراہوں کے بھی بہت زیادہ رپورٹ ہوئے. اب یہ گزشتہ رات کا جو واقعہ ہے یہ بہت افسوسناک تھا, اور ان کے معصوم بچوں کے سامنے ہوا یہ پیش واقعہ آیا. لیکن آج ایک اسٹیٹمنٹ کہہ لیں سی سی پی او کی طرف سے لاہور کی جانب سے جو آیا, مجھے اس پر بڑا افسوس ہے. وہ اس لیے کہ ان کی بات سے ایسا لگ رہا تھا کہ ہم جو وہ ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں نا اس طرح کے ملزمان کو, کہ کیا خواتین پر, بچوں پر, اگر ہم اس بات پر آئیں کہ وہ یہاں کی شہریت نہیں رکھتی تھی یا وہ پاکستان کو بھی فورن کنٹری سمجھ کے اس ٹائم پہ بچوں کے ساتھ نکلی ہوئی تھی, تو یہ معصوم بچوں کا دیکھیں نا پوائنٹ یہ والا ہے کہ کیا پھر وہ معصوم بچے جو ہوتے ہیں وہ سب کیا کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ. میں تو صرف بچوں کی بھی بات نہیں کرتی, ہمیشہ سے کہتی ہوئی آ رہی ہوں کہ ہمارے مدارس میں دیگر جگہ پر جو بچے جاتے ہیں, چائلڈ ابیوز ہوتا ہے, ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو یہ فیمیلز کے ساتھ بھی اگر ہو رہا ہے تو خدا را پھر وہی بات ہے, ہمیں نیگیٹو چیزیں ہم اپنے معاشرے سے یہ چیزیں کیوں لے کر آ رہے ہیں کہ اس نے یہ پہنا تھا, اس نے یہ کیا تھا, یہ یہاں سے جا رہا تھا. یہ ہم اس چیز کے اوپر ہم ان ملزمان کو کیوں نہیں بے نقاب کر رہے ہیں, ہم انہیں ڈیفینڈ کیوں کر رہے ہیں. ان چیزوں کو بھی تو ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے نا. جس طرح سے یہ کیسز ہو رہے ہیں یہ بڑھ رہا ہے اس وجہ سے کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو, جس طرح میں نے آپ کو ابھی اسمبلی کے بل کا کہا کہ اس میں جب لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں, جب بہت زیادہ, دیکھیں میں تو آپ کو اسی لیے دوبارہ سے تھینکس کروں گی کہ جو ٹی وی چینل, میڈیا کے جو بھی ادارے ایسے جو بھی ایشوز ہیں سینسیٹیو اور انہیں ہائی لائٹ کر رہے ہیں اور آواز اٹھا رہے ہیں ان کے لیے, تو آپ لوگ بھی اپنا نیکی میں حصہ ڈال رہے ہیں, بہت پازیٹیو کام کر رہے ہیں. مگر وہ لوگ بھی تو ہیں, ہمیں انہیں اوائڈ نہیں کرنا چاہیے جو اس طرح کی چیزوں کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں, اور وہ اس کو سپورٹ کرنے کے بجائے وہ بولتے ہیں نہیں یہ یوں نہیں ہونا چاہیے, یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح سے اسمبلی کے بل کی بھی بات ہے, اسی طرح سزاؤں کی بھی بات ہے. بالکل درست ہے نازیہ صاحب, آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں. آپ چونکہ جو چائلڈ ابیوز ہے اس کے اوپر آرٹیکلز بھی لکھتے رہی ہیں, آپ کا بڑا مطالعہ بھی ہے اس بات پہ. آپ کے خیال میں اس کا حل کیا ہے؟ معاشرے میں کیا کوئی ایجوکیشن کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے, یا آپ کے خیال میں اس اور اگر ہم اس سچویشن کو دیکھیں اس میں سے ہم کیسے نکلیں؟ کیونکہ یہ جو ریپ کے کیسز ہیں, زیادتی کے کیسز ہیں, ان میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے, تو اس کا حل آخر کیا ہے؟ دیکھیں وہی پھر بات آ جاتی ہے جو میں نے بھی پہلے کہا, لوگ بھی اب بہت تھک چکے ہیں. ہم کب تک صرف وہ چلاتے رہیں گے, ٹرینڈز چلتے رہیں گے سوشل میڈیا پہ جسٹس کے لیے کہ اب ہم نے اس کا انصاف چاہیے, اب اس کے لیے. مجھے تو ایسا لگتا ہے اب تو سیکنڈز میں ایک دن ہوتا ہے اور 4 سے 5 ڈفرینٹ ٹرینڈز ہوتے ہیں جو چینج ہو چکے ہوتے ہیں. تو اس سے اچھا یہ نہیں ہے کہ ہم یہ جو ملزمان ہیں جو اس طرح کے فعل میں شامل ہیں, جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں,
उन्हें सजा दी जाए और वो सरेआम फांसी ही उसका हल है, वही वाजिब नाजिया सजा है। साहबा, नाजिया साहबा के कलामी के लिए माजरत, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आकर जो सज़ा और जज़ा का अमल है इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे कि आखिर में क्या सज़ा जो है वो तय की जाए, क्योंकि आवाम की जानिब से प्रेशर है, आवाम चाहती है कि पब्लिकली जो है हैंग किया जाए। मैं बताऊँगा कि कौन से ममालिक में क्या क्या सज़ाएँ मौजूद हैं, हमारे मुल्क में कौन सी सज़ा मौजूद है और कौन सी सज़ा होनी चाहिए, आवाम की क्या ख्वाहिश है और हुकूमत क्या चाहती है, और आने वाले दिनों में हुकूमत इस बारे में क्या इक़दाम कर सकती है। इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।